Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Shahzad Wahid, and what is your name? Yes. Why I am asking this question today from you students? Because perhaps I may miss your name from my mind. So I have to repeat the things again and again. It might be possible that we may miss. It is possible that we may miss something from the lectures and we may reinforce it on the next lecture. Therefore, it is important to say that we have missed few points from the last lecture in the structure of what? Chloroplast. So we will have a very quick review of the same and then we move to the next topic, right? And today our topic of discussion is the photosynthetic pigments. Remember, we don't have any system after the millions of hours of research that can really convert what? Our chemical energy, our solar energy into chemical energy. After millions of years of research, still we cannot have any system that can convert solar energy into chemical energy in a very amicable way, means that may give me that much huge fraction of products, huge types of products, maybe the trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and then amino acids, and then lipids and DNA, and huge, very well. So only thing on the face of earth that can carry out this activity is, of course, the plant and its pigments. So only thing that can absorb solar energy is the plant pigment or photosynthetic pigment. This is our chapter, and up till now I am going to show you something on the board. Up till now we have got some, you can say, tubes, and we have read this term earlier, and that term was chlorella. I think कि जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर्स में, तो क्लोरेला को हमने बोला था कि एक ऐसा प्लांट है कि जिसको हम लोग रिसर्च के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और हम इसे एक बहुत सक्सेसफुल सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव फूड के तौर पे भी काम कर रहे हैं. पर्टिकुलरली और ये फूड बनाना चाह रहे थे किसके लिए? फॉर द एनिमल्स. सो up till now we have designed, you can say, a system that is basically using what? A naturally existing organism, and that very organism is chlorella, and that chlorella is manufacturing different types of foodstuffs for us under different environmental conditions. So to understand the working mechanism and the role of, you can say, what different types of pigments, we should move to the whiteboard. Welcome to the whiteboard, my dear students, and we are going to revise structure of chloroplast very quickly. And very well, we have got a plant, and plant is basically consisting of definitely root, stem and leaves, and our focus is basically a leaf. And very well, leaf have got two sides. One of them is upper side. अगर आप कलेक्टिव भी अपने माइंड में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. और जो अदर वन वाज लोअर साइड. और मैंने आपको बोला था कि अपर साइड के ऊपर देयर इज अ प्रोटेक्टिव कोट, एंड दैट प्रोटेक्टिव कोट इज बेसिकली व्हाट? क्यूटिकल, and it is basically a waterproof material, waxy waterproof material. And in between these two, you can say upper side and lower side, look at this. If it is the cuticle, and then here was what? The upper epidermis, something like it, and then there was what? Lower epidermis, and lower epidermis was provided with what? Yes, exact, very fine, my dear students. हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की और गार्ड सेल्स की, right? And these two epidermal layers, they are basically sandwiching what? Definitely photosynthetic cells, and upper layer is consisting of finger-like cells and with very, very little intercellular space. On the other hand, this very layer lying beneath this layer, we were naming it as what?
palisade mesophyll cells, right? So beneath this palisade mesophyll cell, there was a layer of loosely packed cells, and these cells were oval in shape, right? They have got what? Huge intercellular spaces, and these particular spaces are also known as what? Yes, air chambers. And then मैंने आपको बताया था, we have got some dots in it, and our topic is basically pertaining to these dots, right? So let's move to these dots. अगर मैं इस डॉट को फोकस करूं, एक डॉट को, तो मैंने आपको बताया था it is basically chloroplast, and this very chloroplast is double membrane bound in structure, and let me allow to draw these two membranes in two different colors so that you may have more better picture or concept in your mind. So I am going to draw the upper layer as red and inner layer what as black, right? This very upper layer of the chloroplast is more permeable. It is more permeable, or it is freely permeable for some substances like water and CO2. And if you look at the inner membrane, outer membrane was more permeable. Let me write this thing, outer one, it is more permeable. And if you look at the inner one, this one, it is less permeable. It is less permeable. I am talking about what? The inner membrane. Now, there is a space in between the two membranes, outer membrane and inner membrane. There is a space, and then there is another space that is basically bounded by the inner less permeable membrane. And this very area, yes, definitely the same where I am rubbing my finger, this very area. This very area is called as what? Stroma. This very area is called as stroma. अगर आप लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपकी जो क्लास है उसमें वो कैविटी दैट इज बाउंडेड बाय द फ्लोर, रूफ एंड 4 वॉल्स, उस पर्टिकुलर कैविटी को, उस स्पेस को जिसमें आप बैठे हुए हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कैविटी, वो स्पेस क्या कहलाती है? स्ट्रोमा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेस दो मेम्ब्रेन के दरमियान में है और एक स्पेस वो है जो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड, उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और इसी के नाम देते हैं हम लोग स्ट्रोमा, राइट? इस स्ट्रोमा के अंदर हमने रिसर्च ये किया था कि स्पेसिफिक किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं, समथिंग लाइक इट, ये वाली बारीक बारीक सी मेम्ब्रेन्स हैं, और ये जो बारीक बारीक सी मेम्ब्रेन हैं इन्हें हम लोग नाम देते हैं लैमेली, LAMELLE, लैमेली। जहाँ कहीं भी हमारे पास बहुत ही फाइन सी थिन सी दो सरफेसेस होती हैं उन्हें हम लोग लैमेली का नाम देते हैं। इन्हीं लैमेली से मॉडिफाइड, इन्हीं लैमेली से डिराइव्ड क्या है मेरे पास? एक और यू कैन से टाइप ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज बेसिकली stacked over each other, something like it. ये ऐसा ऊपर stack हो गया, and this very stack of the modified lamellae, right, यानी कि जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इसकी है वही इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी है, विद अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन दूसरे के ऊपर स्टैक हो गई हैं, they are making nothing other than what? Other than lamellae. And these particular stacked structures, these are called as grana. These are called as what? Grana. और इसमें से अगर मैं
एक मेम्ब्रेन की बात करूं, एक सैक की बात करूं, एक डिस्क की बात करूं, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, सिंगुलर, एंड नेम ऑफ द सिंगुलर थिंग इज ग्रेनम, ग्रेनम, राइट। अब जरा बात को गौर से सुनिए, पहले मैंने आप लोगों से दो स्पेसेस की बात की थी, वन वॉज intermembranous space and other was what, stroma. Now look at this, still there is an other space and that one space is lying inside the granum. तो तीन स्पेसेस हो गई मेरे पास। वो जो ग्रेनम के अंदर की स्पेस है, इट इज बाउंडेड बाय थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेना की मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, लैमेली। अब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और लैमेली आपका डिफरेंस आपस में क्या है कि ये रिएक्शन सेंटर है और ये उनको आपस में जोड़ने वाली मेम्ब्रेन से कनेक्टिव्स हैं, राइट। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फोटोसिस्टम्स का। इनके अंदर जो फोटोसिस्टम 2 है वो ज्यादा है और यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 बिल्कुल नहीं है, बल्कि लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि फोटो सिस्टम क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये वो सिस्टम है दैट इज बेसिकली गोइंग टू एब्जॉर्ब वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। तो हम बात कर रहे थे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी एक स्पेस है और उस पर्टिकुलर स्पेस को जाहिर हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो आप बताएंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन हो, या वो कोई ऐसी स्पेस जो कोई चीज बनाने में हेल्प कर रही हो। मिसाल के तौर पे कि ये वाली जो स्पेस है वो क्या बनाने में हेल्प करेगी, ग्रेनम बनाने में हेल्प करेगी। और इस पर्टिकुलर स्पेस को हम कैसे पहचानेंगे, बाय द बाइंडिंग ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 किस्म की स्पेसेस हो गई, 1, 2 और 3। मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अगर पहले ऑर्डर में बात करेंगे तो हम मूव करेंगे फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर, हम बाहर से अंदर मूव करें। तो सबसे पहले आएगी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, फिर नंबर 2 पे आएगी मेरे पास क्या स्टूडेंट, स्ट्रोमा, और नंबर 3 पे क्या आएगी, मैट्रिक्स ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखना ये है कि इस पर्टिकुलर जगहों में हमारे पास क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आंसर ये है, जो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि ये जो स्ट्रोमा है इट इज वेरी वेरी रिच, इसमें बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स पाई जाती है। खास तौर पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होने चाहिए, एंजाइम्स, जो क्या करेंगे, जाहिर है लाइट रिएक्शन से ऑब्टेन होने वाली प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे टू कैरी आउट डार्क रिएक्शन, राइट। तो जितने भी डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स हैं वो चूंकि स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, तो हम ये बात बड़े वसूख से, बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब इसे डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम लाइट रिएक्शन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात होगी स्टूडेंट्स मेरे पास के स्ट्रोमा ये प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है। फिर अगर मैं आप लोगों से इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, जाहिर है प्रोटॉन्स और व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे काम कर रहे होते हैं हम उसको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आप देखें एक ऐसे प्लांट को, जरा बात को गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी आप लोगों के लिए, कि अगर आप एक ऐसे प्लांट को देखें, अगर आप एक ऐसे प्लांट को देखें जो धूप में ग्रो कर रहा है, राइट, उसका कलर ज्यादा गहरा होता है एज कंपेयर टू उस प्लांट के जो शेडो में ग्रो कर रहा है। तो रीजन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, जाहिर है नंबर का। तो नंबर मीन तादाद किसकी, एक क्लोरोप्लास्ट की पर यूनिट मेसोफिल सेल वेरी कर सकती है, कहीं ज्यादा हो सकता है और कहीं कम हो सकता है। अब सवाल ये था कि ये कहाँ ज्यादा हो सकते हैं और कहाँ कम हो सकता है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये जो मेरे पास क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर, मैं एक वर्ड आपकी नजर कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। जब मैं वर्ड यूज करता हूं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका मतलब ये है
कि ये ज़रूरत पड़ने पे अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे प्लांट सेल डिवाइड हो या ना हो। मतलब ये है कि एक ही प्लांट सेल के अंदर इनका नंबर वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टिमुलस पे, राइट। अगर इसके पास रेप्लिकेशनल स्टिमुलस आ गया, मींस ये डिवाइड कर सकता है, इसका स्टिमुलस आ गया, तो ये वाली ऑर्गेनल्स अपने आप को फॉर्म डिवाइड करके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। यही वाली चीज ट्रू है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी। आप जितना अपने मसल का यूज करेंगे उतने ही आप लोगों के मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे टू प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ एनर्जी। तो डिपेंड कर रहा है किस पे? स्टिमुलस पे। यहाँ पर भी किस मेसोफिल सेल में कितनी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो वो डिपेंड करता है उसके स्टिमुलस पे। अब सवाल ये है कि ये वाला ऑर्गेनल खुद कैसे रेप्लिकेट कर सकता है कि जब इसके पास डीएनए का ऑर्डर ही नहीं है। तो इसका आंसर जो मेरे पास ये है कि ये ऑर्गेनल्स अपने पास दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास दे हैव देयर ओन डीएनए। इनका अपना डीएनए होता है। जब कभी स्टिमुलस मिलेगा इनको तो ये अपने डीएनए को डबल करेंगे और ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। आपको ये वाली बात भी याद है कि जब भी मैं डीएनए बनाना चाहता हूं तो जाहिर है ये यूकैरियोटिक, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जाहिर है बहुत सी प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती हैं। तो उस वाले केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रोवाइड देम विद देयर ओन राइबोसोमल मशीनरी एज वेल। तो इनके पास प्लस देयर ओन राइबोसोम, इनके अपने राइबोसोम्स भी होते, राइट। सो इन दो फीचर्स को रखने की वजह से ये वाले ऑर्गेनल्स अपने आप को एज पर रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं? नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ बातें थी, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर हम इसको क्विक सा रिव्यू देना चाहें फॉर 1 or 2 minutes, उसका ये है कि ये मेरे पास एक लीफ है, लीफ की ऊपर एक अपर एपिडर्मिस होती है और नीचे एक लोअर एपिडर्मिस है। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर आर द सैंडविचेस ऑफ व्हाट? mesophyll cells, and these particular sandwiched mesophyll cells, they have got sausage like or ball like structures that are green color and they can obtain energy from the sun, and these particular organelles are called as what? Chloroplast. If you look at the chloroplast, they consist of course, two membranes. One of them is outer membrane, that is more permeable, and the inner one is less permeable, that is called as the inner membrane. In between these two is the very first phase, and the inner membrane is basically bounding a matrix, so the space that is basically provided with a more proteinaceous fluid-like substance that is called as stroma. And in this very stroma, there is a suspended what? Thallic membrane system that can be differentiated into two things. One of them is called as the lamellae, other one is called as what? The granum. And when different granums combine together, they give rise to the grana, right? And these particular grana can be interconnected by means of what? These lamellae or intergrana, right? And then this particular stroma, it is very very rich in enzymes that is essential to carry out all process of photosynthesis. And if you look at their ability, so they have got a unique ability. They can carry out what? Their own multiplication at their own desire, and it is only possible because they have got their own DNA and their own ribosomes. So after this very quick review, let's move to the next topic that is called as photosynthetic pigments. Now we want to go to this very topic that is called as the need of the pigment. जरूरत क्या है? जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ये बात बोली स्टूडेंट्स के हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम अब तक डिस्कवर नहीं कर सके हम लोग आफ्टर मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ रिसर्च कि जिसमें हम लोग खुद से कोई सिस्टम बना ले कि जो फोटोसिंथेसिस के कंपेरेबल हो। नो वन। तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है? प्लांट्स है। प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं जिनका एक ही यूनिक फंक्शन है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और ट्रैप करने के बाद उससे ऑप्टिमल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि वो जो एनर्जी है वो क्या थी? वो एटीपी थी और एनएडीपीएच थी। वंस वी हैव मेड एटीपी एंड एनएडीपीएच, नाउ वी कैन यूटिलाइज इट टू कन्वर्ट or to synthesize or to make what? New biochemical substances that may be the carbohydrates or amino acids or lipids, blah blah blah, whatever. So it is the need कि अगर इस पूरे अर्थ पे या इस ज़मीन को अपनी फूड की मैनेजमेंट खुद करनी थी, अपने किचन को खुद से रन करना था, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए था? एक पिगमेंट। सो वो पिगमेंट क्या हो सकते थे? आइए अंडरस्टैंड करते हैं। We have discussed the need of what?
photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments. And now we want to see the next thing, how we can predict, very important question, how we can predict that these particular pigments, they are really absorbing sunlight, right? हमने क्लेम तो कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ कायनात में प्लांट के पिगमेंट्स ही वो चीज़ है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट हाउ वी कैन क्लेम इट? क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग? लुक एट दिस। हम लोगों ने स्टूडेंट्स लिया एक लीफ और उस लीफ को हमने कर लिया चॉप। Whenever we say the word chop, इसका मतलब ये है कि मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए और पीसेस बनाने के बाद मैंने उनको एक बीकर में डाला और बीकर में डालने के बाद उसमें ऐड कर दी क्या? अल्कोहल। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर आपने अल्कोहल क्यों ऐड की? तो इसका आंसर ये माय डियर स्टूडेंट्स कि जो अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक है और जो क्लोरोफिल है मेरे पास वो भी क्या है? ऑर्गेनिक। तो यू नो वेरी वेल कि ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों में ही हल होती हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे हल हो जाते हैं। तो अगर मैं इनको भेजूंगा तो ये अपने साथ क्लोरोफिल को डिजॉल्व करके बाहर ले आएंगे। इसके अलावा हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी यूज कर सकते हैं इस टास्क को अचीव करने के लिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल का सोल्यूशन, राइट? आप क्या करें, आप लोग इस क्लोरोफिल के सोल्यूशन को एक क्यूवेट में डाल दें, राइट? ये मेरे पास एक बहुत ही फाइन से प्लास्टिक की बनी हुई एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एंड ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर एक ट्यूब होती है। ऐसे भी 1 सेंटीमीटर है और ऐसे भी ये 1 सेंटीमीटर की, इस तरीके से ये 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस पर्टिकुलर ट्यूब में हम ये वाला सॉल्यूशन भर देंगे, दैट इज डेफिनेटली रिच इन क्लोरोफिल बिकॉज वी हैव डिसॉल्व्ड इट इन अल्कोहल। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर आप बात को गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने किया क्या स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर क्यूवेट को एक रे की रोशनी में रख दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वाइट लाइट, राइट? ये मेरे पास एक सफेद रंग की रोशनी थी और मेरा ख्याल है कि आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल पता है, 9th में भी पढ़ के आए आप लोग, शायद बहुत से बच्चों ने ये वाली बात तो 4-5 में भी पढ़ ली होगी कि जो व्हाइट लाइट है ये पॉलीक्रोमेटिक होती है। Whenever I use the term पॉलीक्रोमेटिक, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं एंड यू नो कि हर कलर किसी खास वेवलेंथ से एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ्स आपस में इकट्ठी ट्रेवल कर रही है। फिर बोल रहा हूं कि हर वेवलेंथ के साथ एक कलर एसोसिएट हो गया है और इसको हम लोग विबग्योर के नाम से बोलते हैं। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? ये विबग्योर। जब मैं इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करता हूं, इस क्यूवेट में से पास करता हूं, तो पास करने के बाद मेरे पास एक डिवाइस यूज होती है, उसे मैं बोलता हूं क्या? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है मेरे पास जो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स को मेजर कर सकता है, राइट? अब मुझे ये वाली बात पता है कि मेरे पास वायलेट से लेकर रेड कलर तक कौन कौन सी वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं, राइट? अब जरा बात को अपने गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो तभी बात समझ आएगी आप लोगों को। मैंने क्या किया कि मैंने व्हाइट लाइट को इस पर्टिकुलर क्यूवेट में से पास किया जिसमें क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसको मैंने अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ था, राइट? बात समझ आ गई? अब जब मैं उन पर्टिकुलर लाइट को इस क्यूवेट में से पास करूंगा तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? 7 की 7 वेवलेंथ्स। कितनी? 7 की 7, क्योंकि कलर थे कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर विबग्योर में से ना तो मेरे पास ब्लू कलर था और ना ही मेरे पास ग्रीन कलर था और ना ही मेरे पास रेड कलर था। इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाले तीन रंग, मैं किस किस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स? आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, रेड। इन तीन रंगों की मैं बात कर रहा हूं कि ये वाले तीन रंग यहां से एब्जॉर्ब हो गए, या अगर मैं एक और टर्म यूज करना चाहूं आप लोगों के साथ, वो क्या थी? रिफ्लेक्ट बैक हो गए। या तो ये तीन रंग यूज हो गए कहीं पर, और या फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गए, राइट। बहरहाल ये वाले तीन रंग अब मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर बैंड ऑफ कलर को, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलता हूं नाम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दे। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुझे ये पता चलता है कि इनमें से कौन कौन से कलर्स या कौन कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल हो सकती है या होती हैं, राइट। ब्लू इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, रेड इस्तेमाल होती है। तो सवाल ये है कि ग्रीन कहाँ चलेगी? तो आंसर ये है कि हमें कोई भी चीज उस रंग की तब नजर आती है कि जब वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अलावा बाकी सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक करे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक रेड मार्कर है, इसकी ये वाली सरफेस सारे कलर एब्जॉर्ब कर रही है एक्सेप्ट रेड। ये रेड को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसीलिए ये रेड नजर आ रही है, राइट। ये मेरे पास एक ब्लू मार्कर है, ये वाली सरफेस ब्लू वेव्स को क्या करे? रिफ्लेक्ट बैक करिए, बाकी सब वेव्स एब्जॉर्ब करे। अब आए दुनिया में प्रेजेंट प्लांट्स को देखें, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? दे आर absorbing or transmitting every wave except green. Therefore, all green surfaces of the plant they appear green, right? क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चला कि इसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है और कौन कौन सी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्या? नीड ऑफ द पिगमेंट, यूज ऑफ द फोटोस्पेक्ट्रोमीटर, and then the concept of what? Action spectrum, right? तो ये तीनों बातें अंडरस्टैंड करने के बाद, and now we want to discuss what the types of photosynthetic pigments, the types of photosynthetic pigments। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं? तो आंसर ये कि जब मैं डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स को एनालाइज करता हूं इन द टर्म्स ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो मुझे ये पता चलता है कि नेचर ने एक प्लांट को ये बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ में से क्या करे? एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकता हो। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, nature has basically placed different types of what pigments into the same cell, right, in the same leaf. So let's pay tribute to the architecture of Almighty Allah and study what relation of different pigments to the wavelengths absorbed. So look at this. There are 4 different types of pigments. Number 1 is chlorophylls, right? एंड यू नो वेरी वेल क्योंकि बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ए, देन बी, देन सी एंड देन डी, राइट। आपको ये बात पता है, हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास ज्यादा ब्लू और रेड जोन में से क्या करती हैं? एनर्जी को हार्वेस्ट करती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। और जो दूसरी टाइप है मेरे पास, उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट? केराटिनॉइड्स। और ये जो मेरे पास केराटिनॉइड्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली एब्जॉर्बिंग you can say light from yellow and red zones, yellow and red zones of the spectrum, right? और अगर मैं बात करता हूँ किसकी? कैरोटीन्स की, CAROTENES। ये जो आपकी टीन है, जब वो वाला टीन नहीं है, ये कैरोटीन्स हैं। एंड इफ यू लुक एट इट, तो इट कैन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द रेड एंड orange zones of the spectrum। अगर हम फाइनली देखें तो जो हमारे पास लास्ट टाइप है पिगमेंट्स, उसका नाम क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। और ये जो मेरे पास डिफरेंट किस्म के
Xanthophylls, and they are going to absorb light from the yellow and orange zones. तो आपने देखा कि नेचर ने इन पर्टिकुलर पिगमेंट्स को कितनी सलाहियत दी है कि वो डिफरेंट जोन में से लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक ऑफ कोर्स नथिंग अदर देन द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट फूड स्टफ्स, राइट. आई वाज थिंकिंग कि हम इस टाइम में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लोरोफिल को भी डिस्कस करेंगे, but we want to have a break and then we shall discuss structure of chlorophyll in more detail in the next, you can say, lecture. Till that time, take very good care of yourself and your great parents. Allah Hafiz.